Welcome back again. I'm Rajesh Mohan. I welcome all of you on my YouTube channel. Guys, we have started a 10-minute concept series. In the last lecture, we had discussed national income accounting, where I had talked about GDP calculation, GNP, NDP, etc. If you haven't watched, then do watch that particular video also. In today's lecture, we would be discussing about different type of goods. There are final, intermediate, given, public. So there are various type of goods also. Okay, and we would be understanding these goods in quite detail. After watching this video, I can assure you any question on these topics could be easily answered by you. Okay, there from here they can ask you one liner question and they can ask you some really good questions like this one. They have given 3 rows, and in those rows they have mentioned the type of goods, their characteristics and example, and they are asking you in how many rows above rows the given information is correctly matched. ओके, तो आपको यहाँ पर गिवन, वेवलेंथ एंड पब्लिक गुड्स के बारे में दिया हुआ है, राइट। आपको बताना है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इफ यू ऑलरेडी नो अबाउट दीज थिंग्स यू कैन डायरेक्टली मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू डोंट देन डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपके ये सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे और इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे ही उड़ा दोगे। ओके, तो सबसे पहले अगर टाइप्स ऑफ गुड्स की बात करें तो गुड्स को दो तरीके से बांटा जाता है इन द बिगनिंग, एंड विच इज द फाइनल गुड्स एंड सेकेंड वन इज द इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होता है? जनरली those goods which are ready to use, means they won't go under further production. Okay, they won't go under further productions, they are basically ready to use, they ready to consume. Okay, intermediate goods क्या हो गए? इसी के अपोजिट, because they were ready to use but these goods would further go to production. Okay, will go under production, once again will go under production या processing again. Okay, means intermediate goods are those goods which would be used again to produce the final goods. Okay, like, और ये ऐसा भी हो सकता है कि कई तरह के कई ऐसे गुड्स होते हैं जो मैन्युफैक्चर्ड हो चुके हैं, आपको लगेगा कि ये फाइनल है बट नहीं, क्योंकि उसका इस्तेमाल दोबारा फिर से होने वाला है। लाइक मैं बात करूं स्टील सीट का। ओके, स्टील सीट की बात करें, सो स्टील सीट बेसिकली क्या होगा? इसका इस्तेमाल फिर से होगा कहाँ पर? कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। ओके, ब्रिज बनाने के लिए एंड डिफरेंट एक्टिविटी, हाउस होल्ड में, बिल्डिंग्स में, अलग अलग जगह पर जो इसका इस्तेमाल होगा। ओके, सो इट वुड बी कॉल्ड एज इंटरमीडिएट बिकॉज दीज आर द फाइनल प्रोडक्ट एंड टू प्रोड्यूस दिस फाइनल प्रोडक्ट दिस इज बेसिकली बीइंग यूज्ड एज अ intermediate goods. Okay, so any goods which will again go under the processing and production to produce some final goods are called as intermediate goods. Okay, if I have to talk about the final goods, then the final goods are further categorized into two parts, the first one being capital goods and the second one being consumer goods. As the name suggests, consumer means the one which will be consumed by the individual. Capital क्या होता है? It's a kind of investment. Whenever capital is mentioned, it is kind of investment. Okay, capital is basically investment. So what capital will include? It will include plants, machineries, any kind of technology innovation. So all these would be included, plant, machines. Basically these are the goods which are also used to produce the final goods, but they are not the intermediate, they are final goods but still they are basically used to produce the final goods. तो ये कैपिटल गुड्स होते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ प्लांट्स एंड मशीन, मैंने बता ही दिया, ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि ये आपको लॉन्ग लास्टिंग होता है। ओके, दे आर बेसिकली फॉर 3 and 4 years तक या 10 साल तक भी यूज होते हैं। ओनली थिंग इज दे गेट वियर एंड टीयर, मतलब इसमें आपको जो खराब होने का चांस रहता है, ये चीज़ खराब हो सकती है। और दूसरा क्या होता है, इसका प्राइस डिप्रिसिएट करता है। ओके, डिप्रिसिएट करता है मतलब कि विथ यूज, अब कोई भी चीज़ है लंबे समय तक यूज होगा तो उसका क्या होगा? प्राइस डिप्रिसिएट करेगा, उसके प्राइस में डिप्रिसिएट। यही दो चीज़ें होती है। कंज्यूमर गुड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स एज नेम से, ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लास्टिंग, ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लास्टिंग, एंड नॉन ड्यूरेबल मतलब जो तुरंत खराब हो जाए, 3 दिन 4 दिन या 3 to 15 days. The shelf life of the goods are only 3 to 15 days in most cases. Okay, these goods are also called as perishable goods.
नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज पेरिसेबल गुड्स। ओके, क्योंकि ये जल्दी खराब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क या एनी काइंड ऑफ आइटम्स विच बेसिकली देयर सेल्फ लाइफ इज लो सेल्फ लाइफ जिसका होता है उसको हम लोग नॉन ड्यूरेबल बोलते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। तो सच गुड्स आर बेसिकली ड्यूरेबल गुड्स। ओके, जनरली 2 to 3 years इसका लॉन्ग लास्टिंग होता है, इसलिए इसको हम लोग ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं, राइट। एंड दीज आर कॉल्ड नॉन पेरिसेबल। ये क्या कहलाता है, ये नॉन पेरिसेबल कहलाता है। तो आई हैव रिटन ऑल दीज थिंग्स ओवर हियर, यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप इस यहाँ से भी देख सकते हैं कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, ड्यूरेबल क्या होता है, सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। नाउ अनदर कैटेगरी इज गिवन गुड्स। अब देखो गिवन गुड्स एंड वेवलेंट गुड्स को आपको एक साथ पढ़ना पड़ेगा। वेवलेंट गुड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्नॉब गुड्स। याद रखना, कई बार एग्जाम में यही ऑप्शन दे देता है। ओके, सो if I have to explain you given and wavelength, then I would say you focus on keyword, which is inferior good. Okay, and these are luxury goods, type of luxury goods. So whenever given goods will be discussed, we are basically talking about some inferior good, and whenever some wavelength या snob good be concerned, we are talking about luxury goods. तो अगर inferior good की बात करें, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग पुअर के बारे में बात करेंगे। ओके, और यहां पर हम लोग रिच के बारे में बात करेंगे। वी वुड बी टॉकिंग अबाउट रिच। ओके, अब देखो गिवन गुड्स होता है क्या, बेसिकली इट इज बेसिकली नेम्ड एंड आइडेंटिफाइड आफ्टर स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट सर रॉबर्ट गिवन। he said that basically there are some goods, there are some staple goods। ओके, जनरली जो लोग डे टू डे यूज के लिए फ्रूट्स के लिए यूज करते हैं, देर आर सम गुड्स whose consumption increases with increase in price, which basically seems to contradict the typical law of demand in economics। law of demand क्या बोलता है कि when the price of some goods increases, law of demand बोलता है कि प्राइस अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, डिमांड डिक्रीज करेगा। ओके, बट दीज आर द काइंड ऑफ गुड, दिस इवन द गिवन गुड्स और इवन द वेवलेंट गुड्स, इसमें क्या होता है कि these goods basically contradict this law of demand। okay, इसके साथ क्या होता है कि with increase in price demand also increases। okay, with increase in price demand also increases। तो इसीलिए बोला गया है कि these are kind of inferior goods experiences an increase in quantity demanded at its price rises। okay, which seems to contradict the typical law of demand in economics। okay, तो ये चीजें आपको यहाँ पर बोली गई। अब देखो इसको एग्जाम्पल के समझो कि आखिर होता क्या है। तो गिवन गुड्स आर बेसिकली ब्रेड और राइस। तो व्हेन द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेज या व्हेन द प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीजेज, तो जनरली दोज हु आर पुअर और दोज हु आर मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप, स्पेशली इन वेरी पुअर इकोनॉमी, what they do, if the price of bread rises, people basically think that they may not be able to afford। अगर मान लो इसका प्राइस पहले क्या था कि they were able to buy this in 1 rupees 10 rupees पर किलोग्राम, अब ये बढ़कर 20 रुपीज किलोग्राम हो गया। तो उनका अपना सेटिंग था कि 10 रुपये हम लोग जो है चावल में लगाएंगे और बाद बाकी पैसे का हम लोग वेजिटेबल या मीट बाय करेंगे, राइट, वट एवर दे वॉन्टेड टू सप्लीमेंट दैट। बट जैसे इसका प्राइस बढ़ गया तो उनका बजट तो अब खराब हो चुका है, तो वो क्या करते हैं कि क्योंकि मीट एंड वेजिटेबल ये सप्लीमेंट्री चावल के साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग खा सकते हैं, तो वो इसी का कंजप्शन इंक्रीज कर देते हैं, दे डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ मीट एंड वेजिटेबल। ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। साइकोलॉजिकली क्या है कि बिकॉज दे थिंक दैट दे वोंट बी एबल टू अफोर्ड मोर एक्सपेंसिव फूड्स लाइक मीट एंड वेजिटेबल, तो रेदर देन गोइंग फॉर मीट एंड वेजिटेबल वो क्या करते हैं, जो राइस एंड ब्रेड था उसी का कंजम्पशन इंक्रीज कर देते हैं, एंड एज ए रिजल्ट दे एंड अप बाइंग इवन मोर ब्रेड सिंस इट इज अ स्टेपल फूड। ओके, क्योंकि दे कांट अफोर्ड और दे कांट सब्सटीट्यूट विद अदर बेटर अल्टरनेटिव्स। तो यही चीज आपको गिवन गुड्स में होता है। अगर मैं इसी को दूसरा इसी का अपोजिट लूँ वेवलेन में, तो वेवलेन में क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू रिच एंड इट इज टू लग्जरी गुड्स। तो जो ये अमीर लोग होते हैं उनका ये सोचना होता है कि विथ प्राइस इंक्रीजेज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मे हैव इंक्रीज्ड and also it basically suits to their prestige। okay,
या दे थिंक दैट इट इज बेसिकली सम प्रेस्टीज एसोसिएटेड विद ओइंग देम, क्योंकि अब और कोई बाय नहीं कर सकता है तो मैं उसे बाय कर सकता हूँ। सो सच काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। तो ये भी साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। लाइक आपको हाई एंड ज्वेलरी, डायमंड की ज्वेलरी हो गई, या एक्सपेंसिव वॉचेज हो गई, लग्जरी कार्स हो गए। सो दीज आर बेसिकली वेवलेंट गुड्स। ओके, इट इज बेसिकली लग्जरी गुड एंड एसोसिएटेड विद रिच पीपल। ये दोनों ध्यान रखना। इसके बाद आता है प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स। प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं? यहां पर भी दो कीवर्ड आपको याद रखना है, राइवलस एंड एक्सक्लूडेबल। राइवलस एंड एक्सक्लूडेबल। whenever we talk about private goods, basically it has characteristics of rivalous and excludable. Okay, तो rivalous basically क्या होता है? Rivalous, when a person consumes a private good, it reduces the amount available, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा प्रोड्यूस कर रहा है, सो इट इज ए लिमिटेड इन नेचर। ओके, इसका क्या है? ये लिमिटेड इन नेचर है। तो लिमिटेड है तो क्या हो गया कि अगर मान लो लिमिटेड है और 50 लोग उसको रिक्वायर्ड हैं, बट देर इज ओनली 10 गुड्स। ओके, प्राइवेट हैज प्रोड्यूस, क्योंकि वो लिमिटेड प्रोड्यूस करेगा, उसको उसको अच्छे दाम में बेचना है, तो वो लिमिटेड प्रोड्यूस करता है। सो दे हैव प्रोड्यूस्ड ओनली 10 गुड्स एंड देयर आर 50 पीपल हु आर डिमांडिंग दैट पर्टिकुलर गुड्स। तो इसमें क्या होगा? एक राइवलरी होगा, देयर वुड बी सम राइवलरी। ओके, देयर वुड बी सम राइवलरी एसोसिएटेड। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि अब मान लो किसी ने एक इसमें कंज्यूम कर लिया, तब 9 लोग ही कंज्यूम कर सकते हैं, 2 कर लिया तो 8 ही कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है व्हेन अ पर्सन कंज्यूम्स अ प्राइवेट गुड, इट रिड्यूसेस द अमाउंट अवेलेबल फॉर अदर्स। एंड फॉर एग्जांपल, इफ यू बाय a sandwich then someone else कैन नॉट ईट दैट पर्टिकुलर सेम सैंडविच, राइट? तो ये चीजें होती है। एंड एक्सक्लूडेबल का मतलब होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो आपका एक्सेस जो है वो लिमिट कर सकता है। लेट सपोज नेटफ्लिक्स बोलेगा कि भाई इंडिया में हम ये कंटेंट पब्लिश नहीं करेंगे, ओके, ओनली द यूएस पीपल कैन वॉच दिस कंटेंट। तो ये क्या हो गया कि उसका आपको एक्सेस लिमिटेड कर दिया गया, या उन्होंने बोल दिया कि आई विल टेक चार्जेज, नॉट ऑल द पीपल कैन वॉच दिस कंटेंट। जो लोग सब्सक्रिप्शन बाय करेंगे दे कैन ओनली वॉच दिस पर्टिकुलर थिंग। तो उन्होंने क्या कर दिया कि एक बड़े सेगमेंट को एक्सक्लूड कर दिया। ओके, दे हैव लिमिटेड द कंटेंट। तो कंपनी कैन प्रिवेंट समवन फ्रॉम यूजिंग देयर सर्विस और प्रोडक्ट बाय चार्जिंग और रेस्ट्रिक्टिंग एक्सेस। तो इसलिए इसको हम लोग एक्सक्लूडेबल बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपको उसके एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं। उसी तरह से अगर पब्लिक गुड्स बोला जाए तो पब्लिक गुड्स आर नॉन अराइवलस, नॉन एक्सक्लूडेबल। Public goods are non-arrivalous, non-excludable. Means they had to be consumed by anyone. They could be consumed by anyone, and also it could not be excludable. Okay, so, like if I have to example, national defense, military सबके लिए है. The protection provided by the military is for everyone. Okay. It's not like it is for only one person. Similarly, the clean air, public part, street light, all these are basically public goods, because one person consumption of the good does not reduce the ability of others, and also no one can prevent you from using the good. इसीलिए इसको मतलब public goods बोलते हैं। तो याद रखना, these are non-rivalous and non-excludable. Then comes the club goods. Club goods are basically, these are excludable but non-rivalous. Okay, these are excludable but non-rivalous, like satellite TV, private parks, movie theater, etc. Then there is two more, tangible goods and intangible goods. Tangible goods basically which has physical structure, like building, equipment, plants, ये सब को हम लोग tangible goods बोलते हैं. Intangible goods basically these are generally not the goods, these are services. Okay, these do not have any kind of physical structure, like trademarks. ओके, लेट सपोज आपने कुछ नया इनोवेशन क्रिएट किया, नया कुछ क्रिएट किया है, तो यू वुड बी रजिस्टरिंग देयर इट्स ट्रेडमार्क. ओके, though it has value associated, it is a kind of capital for you, but it did not have any kind of physical structure. Okay, आपने कोई ब्रांड क्रिएट किया, आपने कॉपीराइट जनरेट किया है, सो ऑल दीज आर इनटेंजिबल गुड्स. तो याद रखना, देयर आर अनदर कैटेगरी, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल गुड्स. ओके, सो दैट्स ऑल बेसिकली टाइप्स ऑफ गुड्स. अब अगर आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करना होगा, आप लोग आसानी से कर सकते हैं. गिवन गुड्स क्या हो गया? द डिमांड इंक्रीजेज एज द प्राइस राइजेज. सही बात है, बट द एग्जाम्पल इज गिवन राइस. Is it correct? Yes, rice and breads are basically kind of inferior goods, जो जनरली आपको डिमांड इंक्रीज होने के बाद प्राइस राइज होता है. सॉरी, डिमांड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ प्राइस. देन कम्स द वेवलेंथ, डिमांड इंक्रीजेज एट द प्राइस. बात सही है, करेक्टरिस्टिक्स इसका भी सेम करेक्टरिस्टिक्स है, बट द एग्जाम्पल इज डिफरेंट. मीन्स लग्जरी बेसिकली गुड्स होने चाहिए. तो एग्जाम्पल में दिया हुआ है लग्जरी कार. पब्लिक गुड्स नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवलस, जनरली पार्क. तो तीनों करेक्ट हो गया. सो ऑल थ्री आर करेक्टली मैच्ड. तो क्या हो जाएगा? ऑल थ्री आर करेक्टली मैच.
गाइस दैट्स ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ़ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम मी तो आप मेरे कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके।